The fourth point for the critical thinking, this is logic. What is logic? Logic specifically make the sense of activity or thought. वो हमारी सोच का या हमारे जो थिंकिंग हम सोच रहे होते हैं या हम उस पर कोई आंसर कर रहे हैं तो उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें लॉजिक की जरूरत होती है. Then how does this follow from what I said before? कि हम कैसे कह सकते हैं जो हमने पहला थॉट दिया है तो हम उसी को ही फॉलो अप करके रखें कि जो हमारा सिचुएशन को देखने के बाद जो हमारी थिंकिंग आ रही है, हमारा थॉट आ रहा है, तो आइदर वो पहली हमारी सोच के रेलेवेंट में ही आ रहा है या वो चेंज आ रहा है. सो डज दिस कॉन्ट्राडिक्ट अ प्रीवियस स्टेटमेंट? देन हमें देखना है कि प्रीवियस हमारी स्टेटमेंट जो थी उससे कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा. These all things we have to monitor. Like Superman can see through anything. Superman जो है वो किसी चीज से भी देख सकता है. सेकंड जो है वो स्टेटमेंट आ रही है जी, Superman can see through walls. सुपरमैन जो है वो देख सकता है वॉल्स से भी. देन सुपरमैन कैन सी थ्रू यू. सुपरमैन आपसे भी देख सकता है. सो when the combination of thoughts are mutually supporting and make sense in combination, the thinking is logical. जब हमारी सारी चीजें जो हम थॉट्स आ रहे हैं हमें म्यूचुअली वो सपोर्ट कर रहे हो हमारी थिंकिंग को, उनकी कॉम्बिनेशन मैच हो रही हो, तो देन वी कैन से दैट के the our thought is logical. Then हमारे पास 8 जो है critical thinking के लिए most point, this is fairness. कि we must think fairly. For example, do I have a vested interest in this issue? कि मैंने अपना इंटरेस्ट वेस्ट किया हुआ है किसी स्पेसिफिक इशू पे, और am I sympathetically representing the viewpoints of others? क्या मैं दूसरों के पॉइंट्स को सिंपैथेटिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ या उसे बियासफुली कर रही हूँ? Am I open minded? क्या मैं ओपन माइंडेड हूँ या मैं क्लोज माइंडेड के तौर पे सोच रही हूँ? Everybody is genius. हर कोई जीनियस है, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कॉल है कि everybody genius है, but if you judge fish by its ability to climb a tree, अगर आप फिश की एबिलिटी मेजर कर रहे हैं on the basis of climb a tree, so it will live its whole life believing that it is stupid. वो पूरी जिंदगी यही सोचती रहेगी, या हम यही अगर थॉट रखते हैं कि हम किसी फिश को क्लाइंब अ ट्री के हिसाब से, तो फिर वो स्टूपिड ही रहेगी, हम उसे जीनियस नहीं सोच सकते. So there is no fairness in our thought. We do not naturally consider the rights and needs of others on the same plane with their own rights and needs. But to be a good thinker, you should apply fairness in your thinking. कि अगर हम fairness से think कर रहे हैं तो फिर हम good thinker हो सकते हैं, and we can reach towards the good critical answer of our thinking. These are 8 points of critical thinking. So now we are going towards the benefits of critical thinking. कि critical thinking के benefits क्या होते हैं? At work अगर हम देखें तो there are more and more employees, so those are looking for employees not with specialized academic skills but with good thinking and communication skills. Different employers जो हैं वो बहुत ज़्यादा employees को देख रहे होते हैं on the basis of good thinking and communication skills, जबकि वो उनकी academic skills और specialized technical skills पे कम फोकस करने होते हैं.
Why? Because critical thinker can learn quickly and solve problems, shows creativity, gather and analyze the issue meaningfully. वो issues को मीनिंगफुल वे में गैदर भी करेंगे और एनालाइज भी करेंगे. दिस हैज बिकम वाइटल स्किल फॉर एनी प्रोफेशनल. प्रोफेशनल्स के लिए क्रिटिकल थिंकिंग इज द वाइटल स्किल. विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग we cannot develop our skills and our organization. Second benefit जो स्पेसिफिक हमारे वर्क एरिया में हमें आ रहा है, in daily life it helps us avoid making foolish decisions. हम बेवकूफ़ाना डिसीजन नहीं लेंगे. Helps us become a good citizen capable of making good decisions on important social, political and economic issues. हमें हेल्प करेंगे गुड सिटीजन बनने में. हेल्प अस इन डेवलपिंग गुड थिंकिंग स्किल्स कैपेबल ऑफ एग्जामिनिंग आवर ओन assumptions and dogmas. कि हमें डेवलपिंग गुड थिंकिंग स्किल्स, अगर हमारी थिंकिंग स्किल्स गुड होंगी तो हम कैपेबल हो सकते हैं जो हमारे डेली रूटीन के assumptions हैं उनको हम राइट वे में एग्जामाइन कर सकते हैं. ये डेली लाइफ में हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग के. नाउ व्हाट इज द बैरियर टू क्रिटिकल थिंकिंग? कि कौन से बैरियर्स हैं जिस वजह से उनकी थिंकिंग हमारी क्रिटिकल नहीं होती? यू माइट आस्क इफ अ क्रिटिकल थिंकिंग इज सो इम्पोर्टेंट देन व्हाई इज अनक्रिटिकल थिंकिंग सो कॉमन? जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्यों हमारी थिंकिंग जो है वो अनक्रिटिकल होती है? ज़्यादा कॉमन हमारी थिंकिंग अनक्रिटिकल क्यों है? वाई? Why is that so many people, including the highly educated and intellectual people, find it difficult to think critically? क्यों बहुत सारे लोग जो हैं हाईली क्वालिफाइड और इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद भी इसको मुश्किल समझते हैं किसी चीज़ को क्रिटिकली थिंक करने में? So there are different barriers who hinder to think critical. Like there are 5 most powerful barriers to critical thinking. जिसमें पहला हमारे पास है ईगोसेंट्रिज्म, सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग, सेल्फ इंटरेस्ट थिंकिंग. हम अपने इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं. थिंकिंग सेल्फ एज ए सेंटर ऑफ अटेंशन, हम अटेंशन के लिए थिंक कर रहे होते हैं. सेकंड इज सोशल सेंट्रिज्म, जिसमें ग्रुप सेंटर्ड थिंकिंग, ग्रुप इंटरेस्ट थिंकिंग है हमारी. अज्यूम देयर ओन ग्रुप इज मोर सुपीरियर और राइटियस. थर्ड फुल इज जो थर्ड बैरियर है, दिस इज अनवारंटेड assumptions, कि हमारी जो assumptions हैं वो वारंटेड नहीं है. आई बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट प्रॉपर एविडेंस और जस्टिफिकेशन. हम किसी की स्टेटमेंट पे विदाउट एविडेंस और जस्टिफिकेशन की बिलीव कर रहे हैं. देन विशफुल थिंकिंग, बिलीविंग समथिंग इज ट्रू बिकॉज वन विशेस इट टू बी ट्रू. हम सिर्फ किसी की विश की वजह से उसकी थिंकिंग को ट्रू समझ रहे हैं. रिलेटिविज्म, thinking that truth is just a matter of opinion. हम कह रहे हैं कि जी ट्रुथ जो है वो जस्ट एक ओपिनियन है जो कोई दे रहा है. वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स द डेप्थ ऑफ सच थॉट. हम उसके रिलेटिविज्म में नहीं जा रहे हैं. थिंकिंग दैट ट्रुथ इज जस्ट अ मैटर ऑफ ओपिनियन, हम कह रहे हैं कि जी ट्रुथ जो है वो जस्ट ओपिनियन का ही मैटर है, जबकि उसकी डेप्थ में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही. The problem is not the problem, that problem is your attitude towards the problem. This is the statement of John Anderson. वो कहते हैं कि जी प्रॉब्लम नहीं होता, but problem is your attitude toward the problem. When you are making right attitude towards your problem, then you can solve it. But if you are going a wrong way to solve your problem, or your attitude towards the problem is wrong, then this problem make more problems for you. Then seventh thing is characteristics of critical thinking. हमें देखना है कि now we are discussing the
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकर। प्रीवियस हमने डिस्कस किया कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए, देन हमने उसके बेनिफिट्स देखे, देन हमने बैरियर्स देखे। नाउ वी आर मेकिंग अ वन आई ऑन द क्रिटिकल थिंकर कि क्रिटिकल थिंकर को किस तरह होना चाहिए। सो देयर आर सम पॉइंट्स फॉर मेकिंग क्रिटिकल थिंकिंग वी मस्ट हैव ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स कि जो हम थिंक कर रहे हैं आइदर हम उसके साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं है। रिगार्ड प्रॉब्लम्स आर कंट्रोवर्शियल इश्यूज एज एक्साइटिंग चैलेंजेस, क्या वो प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं या नहीं है जो एक्साइटिंग चैलेंज के तौर पे हम ले रहे हैं। Strive for understanding, keep curiosity alive, remain patient with complexity. अंडरस्टैंडिंग के लिए स्ट्राइव करते रहें, क्यूरोसिटी के साथ, पेशेंट विद कॉम्प्लेक्सिटी कि आप उस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए क्यूरोसिटी में रहते रहें जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर लेते। देन क्रिटिकल थिंकर make based judgment on evidence rather than personal references. Critical thinker always judgment evidence based बनाएगा ना कि personal reference से। Critical thinker are interested in other people's ideas and so are willing to read and listen attentively. Critical thinker दूसरों के आइडियाज में इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए वो रीडिंग में और लिसनिंग में अटेंटिव तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। प्रैक्टिस फेयर माइंडेडनेस एंड सीक अ बैलेंस्ड व्यू कि आपके माइंड में फेयरनेस होनी चाहिए और आपके व्यूज में बैलेंस होना चाहिए। प्रैक्टिस रिस्ट्रेंट कंट्रोलिंग देयर फीलिंग्स रादर देन बीइंग कंट्रोल्ड बाय देम, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखें, प्रैक्टिस को बार बार रिस्ट्रेंट में रखें, ना कि आप खुद उन फीलिंग्स के कंट्रोल में आ जाएं। देयर आर सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकर जिसमें ऑनेस्ट होना चाहिए, प्रॉब्लम्स को, कंट्रोवर्शियल इश्यूज को, एक्साइटिंग चैलेंजेस को हमने जो है वो एज एन प्रॉब्लम लेके उसकी स्टेटमेंट की सॉल्यूशन देनी चाहिए, ना कि हम अपने पर्सनल एक्साइटमेंट और पर्सनल कंट्रोवर्शियल व्यूज उसमें इनपुट में डालते जाएं। देन हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है उसके लिए हमें कंटिन्यू कोशिश करनी पड़ेगी क्यूरियोसिटी के साथ। देन हमारे जजमेंट जो है वो पर्सनल रेफरेंसेस से नहीं होने चाहिए। देन इंटरेस्ट जो हमारा है, ये हम जो इंटरेस्ट ले रहे हैं दूसरों के पॉइंट्स में, तो हमें बेसिकली उन्हें सुनना भी पड़ेगा और हमें पढ़ना भी पड़ेगा ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें इन डेप्थ द एग्जैक्ट इशू व्हिच आर वी आर थिंकिंग। देन हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने माइंड को बैलेंस व्यू में रखते हुए। देन हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल रखना चाहिए, ना कि हमारी फीलिंग्स हमें कंट्रोल कर दें। सो एनी क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच, दिस वाज टुडेज लेक्चर। ये सम कोर्स जो हैं famous course for the education is also included in this lecture. Like function of education is to teach one to think intensely and to think critically. So intelligence plus character, that is the goal for true education. ये मार्टिन लूथर किंग का कॉल है। अंडरस्टैंड हम इजीली कर सकते हैं इसको कि एजुकेशन का मकसद जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट है, इंटेलिजेंसी डेवलपमेंट है एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट है। Then अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक, कि माइंड हमारे में जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है उसको हम ट्रेन करें। देन थॉमस एडिसन कहते हैं 5% ऑफ पीपल थिंक, 10% ऑफ पीपल थिंक दे थिंक एंड द अदर 85% would rather die than think. So these are the last some points to share with you. And now lecture is over. Thank you so much for your